Yesterday we have seen the phrases, right? And we had observed the examples of aeronautical phrases that is being used in aviation. Instead of using lengthy sentences and lengthy words, we can use the phrases to describe certain requirements or certain communication. So we have seen many. I'll ask some of them randomly so that I can check your readiness, whether that is clear to you or have you understand those phrases or not. तो आप लोग उसका वर्ड मीनिंग बताओगे. Do let me know when you will use Roger. Roger का इस्तेमाल कब करेंगे? Okay. When? ओके या फिर रिसीव्ड जो करेंगे कोई भी लास्ट ट्रांसमिशन. जा रही सर आवाज? You are audible. Okay. ठीक है. And when you will use affirm, what does Yes. it mean by affirm? Negative? Yes. And negative? क्या चीज? Negative का meaning? नेगेटिव मतलब नो या फिर परमिशन नॉट ग्रांटेड या फिर दैट इज नॉट करेक्ट, नॉट कैपेबल. जैसे मुझे बोला कि ये अगर आप 10,000 फीट ऊपर लेके चले जाओ पर मैं कैपेबल नहीं हूँ तो मैं सीधा बोल दूंगा नेगेटिव. या फिर जैसे मुझे बोला वेक्टर टैंगो सेरा रोमियो जूलियट, अगर मैं वेक्टर टैंगो कुछ और हूँ तो मैं बोल दूंगा नेगेटिव. Very good. Then what does it mean by? What is the difference between approved and clearance? अप्रूव्ड में क्या होता है कि परमिशन जो होता है. No, I need definition first. I need definition. Try to explain in English, because in part 2 you are going to attend Viva. You are going to attend a sort of interview. So try to explain in English first. Then you can convert to example. That is later on. But try to speak in English now. Approved means permission for proposed action granted. Clearance means authorized or approved to proceed under the certain condition. मतलब जैसे अप्रूव्ड में हो गया कि मुझे जैसे इंजन रन अप करना है तो जैसे वहां से मिल गया अप्रूवल, ठीक है हम अप्रूव करके इंजन रन अप कर रहे हैं. लेकिन क्लियरेंस में क्या होता है कि एक सर्टेन कंडीशन दे देगा हमको कि आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, पर मतलब आइडियल कंडीशन में स्टार्ट कर सकते हैं, ओनली आइडियल कंडीशन में ही कर सकते हैं. इस टाइप का कुछ. आइडियल नहीं, उसको बोलते हैं आइडल. आइडियल, ठीक है. आइडल, IDLE, आइडल. Okay. Papa Romeo will tell me the difference between correction and disregard. What do you mean by them? Correction mean an error has been made in the transmission, the correct version. Or disregard mean ignore completed transmission. तो करेक्शन होता है कि अगर कुछ अपने को मतलब कि एरर हो रही है, मतलब ट्रांसमिट करने के टाइम में मतलब कि ईयर्स पे 300 नॉट है, पर हम लोग बोलेंगे नहीं करेक्शन है 200 है, मतलब अगर कोई पूछे तो एटीसी वाले तो ऐसा ही है ना. और डिसरिगार्ड कि अगर सब कुछ बोल दिए पर पूरा कैंसिल करना है अपने को तो फिर डिसरिगार्ड बोलते हैं. Done. Okay. Now, please do let me know about FIR regions. How many are there? FIR regions. वैसे तो बेसिकली 4 FIR रीजन है. जैसे नॉर्थ रीजन दिल्ली FIR, साउथ रीजन चेन्नई FIR, वेस्ट रीजन मुंबई FIR, ईस्टर्न रीजन कोलकाता FIR और एक और है गुवाहाटी FIR जो कि कोलकाता रीजन के अंतर्गत में ही आता है. And what does it represented with any letter? All those? दिल्ली मतलब नॉर्थ रीजन सॉरी इंडिया, साउथ रीजन ऑस्कर, वेस्टर्न रीजन अल्फा, ईस्टर्न रीजन इको, बोथ. Echo. Done. Very good. And what does you know about readability scale? क्या होता है readability scale?
What do you mean by readability scale? What do you know about that? 5 पैरामीटर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल अनरीडेबल, सेकंड रीडेबल मतलब कि वॉइस कम्स एंड गो, थर्ड रीडेबल विद डिफिकल्टी, फोर्थ रीडेबल बट नॉट प्रॉपरली, फिफ्थ परफेक्टली रीडेबल. Wait. All answer you had given, that is perfect to for the explanation. But when you explain the 4, you don't say readable but perfectly not readable. Simply say 4 means readable and 5th is perfectly readable. If someone will ask you specifically, what is the difference between 4 and 5? What do you mean by perfect and not perfect? Then you can explain, right? But if someone will ask straightforward, 4th readable, 5th perfectly readable. That's all. Done. And about readability scale 2, there you need to say readable now and then. Voice comes and go is the general term what I had written to explain you. Okay? Or just for the easiness to understand. But the standard term for readability scale 2 is readable now and then. Clear? Affirm sir. Okay. Very good. So we'll do practice of some of the airports code today and then we'll move ahead afterwards. Okay? So for that, let me share the chart number 3 today, right? सर वो आपका Sir, your net. स्टक हो रहा है. स्केल ऑफ 2 सर. Okay. Please do let me know if I'm audible and my screen is being shared. Okay. Today, I'll ask Papa Romeo Kilo. If you are comfortable in answering, then start with you first. Please do let me know about the location designator for Srinagar.
Sierra Romeo Juliet, you can go ahead. एक बार सर्किल कीजिएगा वो श्रीनगर, ये श्रीनगर एसएनजी। तो एसएनजी हो गया श्रीनगर, तो दिल्ली रीजन में वेक्टर इंडिया सियरा और गोल्फ। Very good. What about Jammu, Papa Romeo Kilo? जयपुर को सर्किल कीजिए सर। Jammu, Jammu, Jammu. जम्मू, जम्मू JJU बोलू क्या सर? बोलो बोलो. वेक्टर Go ahead. Anyone? Anyone? वेक्टर Vector इंडिया India. यूनिफॉर्म। Victor India, Juliet uniform. Zulu नहीं. जूलियट सर, जूलियट बोला। Papa Romeo Kilo, now you. Amrit sir. I'll give by a call sign. Don't worry. Amrit sir. यार वेक्टर इंडिया अल्फा, Victor India Alpha. वेक्टर इंडिया अल्फा रोमियो। What about Chandigarh? THG वेक्टर इंडिया सी से अपना चार्ली गोल्फ। What about Leh? कौन सा? Leh. ले का क्या LEH TWR है? TWR क्या है उधर? टावर। तो ले का क्या LEH ही है क्या? तो LEH ये हो गया वेक्टर इंडिया लीमा, और H से हो गया आपका Hotel. होटल। Very good. Now, Papa Romeo Kilo will let me know how many ATC offices are there. Papa Romeo Kilo, not Sierra Romeo Juliet. How many ATC offices are there in Delhi, and what are their point of frequency, point of contact frequency? Tower, approach, control. Ground, tower, approach, and control. What is the frequency for ground? 121.9er, tower 118.1, approach 127.9er, control 124.55. Very good. Then what is the location designator for Delhi airport? India डेल्टा और P है ना पापा। Papa, very good. Done. Now, इसमें तो सब कम ही है. Okay. What about Bhopal? भोपाल को सर्किल करो सर। नहीं, दो PL ये हो गया वेस्टर्न रीजन हो गया, तो वेक्टर अल्फा ब्रेवो लीमा। नहीं P पापा। It was an exception, right? I told you that. ठीक है। भोपाल। And what about Udaipur? ठीक है। और कौन सा? उदयपुर UUD, तो वही वेक्टर अल्फा यूनिफॉर्म डेल्टा। I'll recommend you one thing. Whenever you are answering and there you are doing murmuring or you are memorizing some of the thing, keep that thing in the mind. Don't let this come out of your mouth. Okay? Whatever you are thinking of yourself, yes, ऐसा होगा वैसा होगा, this is V, this is A, this is uniform delta. इसको मन में सोचो, ठीक है? Never let this thing come out of your mouth, because whenever you will be into viva, whenever you will be into interview, if this will be come out of your mouth, then that will create a bad impression. ठीक है?
You can take your time while answering, but keep those things in your mind only. ठीक है? मूवी में ऐसा बोल बोल के सोचते हैं ना, वैसा नहीं करना है, right? So all things in the mind only, and let the only answer come out of your mind. That's all. Nothing else. Chalo. Then who is going to tell me about Lucknow? सरल कीजिए सर, लखनऊ दिख नहीं रहा। Have you taken the printout of this chart? सर आज मैं ले नहीं पाया, कल ले लूंगा सर। वेक्टर इंडिया लीमा, sorry, वेक्टर इंडिया लीमा किलो। Please confirm if you are outside or you are in room. मैं रूम में हूँ सर। ठीक। सही से नहीं जा रही आवाज? हाँ, you are audible, but I heard some background noise, so I thought you are walking to your home and I'm asking you continuously. That what does it mean by DATIS? Papa Romeo Kilo, what does it mean by DATIS? Tango Papa Sorry, Romeo sir. Kilo, try answering. नहीं आ रहा? Okay, no problem. Sierra Romeo Juliet. डिजिटल ऑटोमेटेड टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। Very good. Digital automated टर्मिनल terminal info. Means this thing happen when you turn on your radio communication on an airport. An automatic message comes to you. Automatic message comes to you, which will gives the terminal informations. कि इस एयरपोर्ट पे क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या विंड्स का डायरेक्शन है, क्या विंड्स स्पीड है. All those things will be given to you automatically. So that is known as digital automated terminal information services. ठीक है? Now we'll move forward, and the next topic is the chart reading techniques only. Done. So we'll go to the chart one by one. Now, before going there, let me tell you, in examination, the chart that I had shared to you, that is only being given. Okay? But what is happening since मैंने कब एग्जाम दिया था? What is happening since March 2023? Okay, almost 2 years. Okay. I had attended one examination in Hyderabad. There I had found the chart version 2 that I am sharing currently on the screen. Then when I had attended the exam for Delhi session, okay, there I have found the chart that I am going to show you now. This one, route chart 1, not version 2. And after that, whomsoever had given the examination, my students, they were found the same chart. They were find the same chart. This one, route chart 1. But अभी पिछले कुछ दिनों से again they had returned back to chart version 2. ठीक है? अब देखो इन दोनों चार्ट में जो थोड़ा सा डिफरेंस है, that is nothing. I'll show you one by one. Okay, I'm sharing the screen one by one. There are two charts, ठीक है, given by Airport Authority of India. I don't know why they did that, but कभी वो ये वाला चार्ट यूज कर लेते हैं which is new, and कभी कभी वो पुराना वाला चार्ट यूज कर लेते हैं. ठीक है, ये दोनों चार्ट जो है इसमें बस आपको थोड़ा सा क्या डिफरेंस दिखेगा. एक तो जो वर्जन 2 का चार्ट है दैट इज इन HD, क्लियर है और इसके ड्राइंग्स अच्छे हैं. ठीक है, चार्ट 1 आपको घिसा पिटा टाइप दिखेगा, पुराना. एंड डोंट थिंक कि मेरे पास जो कॉपी है मैंने कहीं से चुरा के लाया है, तो
इसका कॉपी अच्छा नहीं आया है या स्कैन अच्छे से नहीं हुआ है। जो ये चार्ट वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में रखते हैं ना, वो भी ऐसा सही सरा हुआ रखेंगे, ठीक है। वो भी आपको दिखेगा कि ये पुराना घिसा पिटा चार्ट ही यूज कर रहे हैं, लाइक दैट। दे हैड नेवर इवन published the clear copy, ठीक है। so the basic difference in between these two charts are, एक तो आपको फ्लाइट लेवल के कंप्यूटेशन में डिफरेंस दिखेगा। आई विल जूम एट भोपाल, यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। लुक एट द भोपाल, एक जगह पे लिखा हुआ है ना F145 मींस फ्लाइट लेवल 14,500 फीट तक भोपाल टावर के कंट्रोल में है, ऑन द राइट साइड। But if you look at the left side, it is written as 145 upon CTR. So altimeter measurement or altimeter का indication in the new chart they had given in the format of fraction, A by B के form में, ठीक है, A by B like this. But in old chart they had given the altimetry representation in the format of बार, ठीक है, लाइक ए बार बी बार, लाइक दैट, कि ए का अपर लिमिट ये, बी का अपर लिमिट ये। सो one by one we'll carry the look upon both chart, and in the old chart distance between two airport is given and the newer one it is not given. So never be mind and never think कि दोनों चार्ट कैसे कंट्रोल करेंगे, बस दो माइनर से डिफरेंस हैं, उसके अलावा एवरीथिंग इज सेम। सो विल डू प्रैक्टिस ऑन बोथ ऑफ द चार्ट वन बाय वन, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट बिफोर गोइंग अहेड, who is going to tell me all 13 parameters of flight plan? If you want, you can take reference with the notes or I'll share on the screen now, ठीक है, I'll share on the screen the all 13 parameters of flight plan. Take reference with that and do let me know what are the flight plan if you will be given opportunity to plan a flight, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं आपको फ्लाइट प्लान वाला पेज। I'll have whiteboard on the right side, so please let me know. पहला एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन, वेक्टर टैंगो सिएरा रोमियो जूलियट, आई फ्लाई 6E-6649 नाइनर। either of the thing, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक बोल। ठीक है, ठीक। फ्लाइट लेवल क्रूजिंग एल्टीट्यूड 18,000 फीट। हाँ 18 बोलना है क्या? सॉरी 1800 फीट। ये तो 1800 ही हुआ। 1800 फीट। You can simply use the flight level format, flight level 180. ठीक है। Go ahead. वेग टर्बुलेंस मीडियम। डिपार्चर एरोड्रोम DEP VOMM चेन्नई, सॉरी VOMM चेन्नई या VITP दिल्ली। ठीक। टाइम 2130। फ्लाइट रूल IFR। नेक्स्ट। अराइवल डेस्टिनेशंस एरोड्रोम लोकेशन डेजिग्नेटर्स। उसे तो उसमें मैप देखना पड़ेगा, पर मैं सिंपल बोल सकता हूँ, मतलब विजयवाड़ा का कुछ भी रैंडम बोल दूं। आपने बता ही दिया ना, दिल्ली टू चेन्नई। तो मैं बता सकता था, पर ऐसे करके भोपाल में जैसे कैसे VAPL डाल सकता हूँ, लेकिन मैप देखना पड़ेगा सर उसके लिए, आसपास जो उसका होगा। ठीक है, I'll show you today. आप आज ठीक है। जब मैं आपको मैप टेक्निक्स बता दूंगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा। टाइप ऑफ फ्लाइट शेड्यूल, अल्टरनेट एरोड्रोम, मतलब जो नियर बाई में होगा उसके अकॉर्डिंग सर वो मैं कर सकता हूँ, उसको देख करके, ऐप देख करके।
Very good. Route calls an of plan routes from departure to destination. Clear. ठीक है. Next. इक्विपमेंट जो है ILS कैटेगरी जैसे 3A 3B 3C. तो आपका क्या रहेगा? 3C. ठीक. Next. एयरक्राफ्ट टाइप एयरबस 320, एयरबस 320. Very good. और एनी अदर इंफॉर्मेशन, मतलब एक एग्जांपल तो मुझे पता है मेडिकल पेशेंट के लिए हो गया, या फिर ऐसे बोल सकते कोई भी VIP मूवमेंट है. कुछ VIP मूवमेंट है then. Okay. Very good. Now, yesterday I was day before yesterday I was explaining the wake turbulence category. ठीक है. So today we'll move ahead, but before going that we'll do practice on some of the things. Now, I was saying about wake turbulence category, right? Let me show one example. Or you might be thinking, sir, wake turbulence इतना important parameter होता है क्या? In future also, whenever we are going to give a call, this will come to you. ठीक है? Now you can look. This is a real news, and I had taken one of the printout. ठीक है? I had taken the printout from Instagram, where this has been marked. It was an aircraft Airbus 380. ठीक है? Airbus 380 जिसका वेक टर्बुलेंस होता है सुपर हेवी. एंड अनदर एयरक्राफ्ट वाज चैलेंजर 604. ठीक है? और 604. Airbus 380 is best in class for the freight carrier or passenger carrier, and Challenger 604 is also one of the largest aircraft in general aviation. वन ऑफ द लार्जेस्ट. सेकंड थर्ड नंबर पे तो रहता ही है जनरल एविएशन में, बिजनेस जेट में. सो बाय द वेक टर्बुलेंस ऑफ एयरबस 380 यू कैन सी दैट एयरक्राफ्ट हैज मेड फ्लिप. पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट चक्कर वो पलटी मार दिया. नाउ यू कैन अज्यूम व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक टर्बुलेंस. सो व्हेनेवर यू अज्यूम कि आपका इंजन ऑन होने वाला है, please do mention your wake turbulence, or please do mention your aircraft model in your call so that ATC can aware of the effect. इस एयरक्राफ्ट का क्या इफेक्ट हो सकता है ग्राउंड पे. Next. Today while answering some of the call, you two had a clash. कभी आप बोलना चाह रहे हो, कभी she was trying to explain, and both were having a clash in their conversation, right? Means you were getting interrupted by each other. So whenever there is a interruption made by any human, okay, interruption made by any human, then that is known as, please make a note, that is known as QRM. ठीक है? तो जब भी कभी ऐसा हो कि आपका कॉल क्लैश करे, let it be. ठीक है? Don't hesitate. Let it be. And after the clash, wait for a moment of 5 to 8 seconds and again try to speak. ठीक है? If it is a clash again, don't be worried. Let it be. Again try to speak in 5 to 8 seconds. कभी ना कभी तो आगे पीछे आएगा. और if it will be a continuous clash, ATC may intervention to you. ATC may intervene and say your call sign and they'll ask you to answer first, like that. So जब भी आपका कॉल क्लैश होता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंसिंग QRM. हम लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? QRM. QRM का मतलब इंटरफेरेंस मेड बाय ह्यूमन. नाउ देयर आर सर्टेन Q codes. ठीक है? दैट इज ऑल्सो गिवन इन द मिसलेनियस डायग्राम वाले फोल्डर में. ठीक है? Q codes, that is certain Q codes are there, but आपको इन सारे Q codes का मीनिंग जानना नहीं है. ठीक है? और don't ever think कि this Q codes is having certain full form, जैसे Q से क्यूबेक, रोमियो, माइक, नहीं, इस टाइप से नहीं बोलते हैं. सिंपली बोलेंगे एक्सपीरियंसिंग QRM. तो ATC अपने आप समझ जाएगा इसको कोई तो डिस्टर्ब कर रहा है.
Done. So if it is QRM, means you are explaining कि I have a human made interference, means किसी आदमी के वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ. ठीक है. There are many Q codes which is already given as a notes to you, but the meaning of these Q codes are not necessary. ठीक है. बस आप एक ही याद करो, QRM. ठीक है. QRM मतलब experiencing interference that is made by human. ठीक है. तो जब भी आपस में कॉल टकराए या आप कॉल करना चाह रहे हो, कोई दूसरा स्टेशन आपको बार बार इंटरफेरेंस कर रहा है, कोई दूसरा इंटरफेरेंस आपको बार बार परेशान कर रहा है, देन आप बोलोगे एक्सपीरियंसिंग QRM. ठीक है. डन. सो आप सिर्फ कंप्लेन करोगे, राइट. अबव ऑफ दिट यू कैन सी कि दिस इज रिटन एज QRL, और QRL का मतलब है कि यू आर वार्निंग समबडी. मैं बात कर रहा हूं ना, फिर तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? तो QRL का यूज नहीं करना है इन इंडियन एविएशन. दिस इज बीइंग यूज्ड इन फॉरेन लैंड वेयर टू प्रोफेशनल्स आर ट्रीटेड एज इक्वल. वहां पे आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं कॉल पे. बट इन इंडिया विल सिंपली डू कंप्लेन एक्सपीरियंसिंग QRM. डन. सो दिस विल बी अ क्वेश्चन. आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा, एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा लिखा रहेगा कि यू ट्राई टू स्पीक विथ ATC, वन एयरक्राफ्ट विक्टर टैंगो सो एंड सो इज कंटिन्यूसली इंटरप्टिंग यू. ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे हम लोग मेंशन करेंगे एक्सपीरियंसिंग QRM. डन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाँ, टाइम वाला. इन द फ्लाइट प्लान, the time whatever it is given, that is standard understood as UTC. ठीक है. On an standard that is understood to be UTC. UTC का full form क्या होता है? Who is going to tell me? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट. Another station. Universal coordinated time. ठीक है. And in India we are following IST. IST का क्या होता है? Indian. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. Very good. Indian Standard Time. Now IST जो है, ठीक है, IST is 5 hour 30 minutes plus UTC. मतलब अगर UTC में that is Greenwich Mean Time, GMT we are saying, right? तो अगर कोई टाइम ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, GMT Greenwich Mean Time, Greenwich is a city in Europe, there we are having universal coordinated time, और उसको हम लोग मीन मानते हैं. मीन मतलब इन बिटवीन ऑफ एनीथिंग. तो अगर वहां पे रात के 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में वहां पे मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं. तो इंडिया का टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5 hour 30 minutes डिले है. नाउ वन बाय वन यू बोथ आर गोइंग टू टेल मी व्हाट इज अनदर स्टेशन. हाँ, you both are going to tell me what is going to be time in IST if these are your timings. For Papa Romeo Kilo, the timings are 1330 and 1352. For Sierra Romeo Juliet, 1343 1325. Do let me know what will be the time in IST. In the question I had given you in UTC, IST में क्या होगा ये टाइम? Please do let me know. पहला का 1913. क्वेश्चन Question not understood?
मैंने No, स्क्रीन पर जो sir. टाइम दिया, ओके यूटीसी टाइम का मतलब होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, ठीक है, एंड आईएसटी मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है दैट इज 5.5 घंटा अहेड, ठीक है, दैट इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ यूटीसी। तो इफ आई हैड गिवन अ टाइम इन द ऑन द स्क्रीन, ये हमने आपको यूटीसी में बताया हुआ है, तो इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना बज रहा होगा ये आपको कन्वर्ट करके बताना है। द क्वेश्चन आई हैड गिवन दैट इज इन यूटीसी, देन व्हाट विल बी द आईएसटी ऑफ दैट। सर पहला का 1913 और दूसरा का 1855। एक तो 9 नहीं बोलना है, व्हाट इज यू आर सेइंग? 1913 और सेकंड का 1855। 8 55। 5 ठीक है। अपर में किलो फ्रॉम योर Sir, साइड first 1900. गुड। Second, 1848. ओके ठीक है। सियरा रोमियो जूलियट 1352 एक सेकंड 13। डू कैलकुलेशन वन मोर टाइम। 13 5 18 19 32 60 22 19 और 1922 9 और छूट जाते हैं। very good, this one is 1922. Now I'll tell you how. You understood Papa Romeo Kilo, or do I have to explain that? Okay, sir, I understood. ठीक। So if you add this one, it will become this. Then you need to subtract and get it to 1 hour. So 1922 will be going to your current IST time. Very good. Now, so you need to have some practice over UTC in IST because that question may come random to you, अचानक से। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंडिया का टाइम 5.5 घंटा आगे है। So whatever the time will come into UTC, simply add 5 hours 30 minutes to them, and then you can find the time in UTC. Clear? What is the full form UTC, Papa Romeo Kilo? Yes, sir. What is the full form of UTC? Universal Coordinated Time. Very good. Now, the next topic we'll have a look on is reciprocal of a runway. ठीक है? While explaining the I had explained the runway nature or number. Here I have told अगर लिखा हुआ है runway 12, it means this runway is making 120 degree in respect of earth magnetic field. तो earth magnetic field हम एक बनाते हैं, ठीक है, and if this is north, north कितने पे होता है? 0 डिग्री पे और 360 डिग्री पे, राइट? मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है। नाउ नॉर्थ कहाँ होता है? या तो 0 डिग्री पे या 360 डिग्री पे नॉर्थ, साउथ 180 डिग्री पे, ईस्ट 90 डिग्री पे, एंड वेस्ट 270 डिग्री पे। सो इफ आई टेल कि रनवे 12 कैसे लाई करेगा ऑन एन अर्थ सरफेस, देन ये क्या बनाता है? 180 डिग्री। तो समहाउ 120 डिग्री इज हेयर। अगर मैं बोलूं रनवे 12 ड्रॉ करो, सो रनवे 12 का इंक्लिनेशन along with earth magnetic field will be this, and just opposite of that will be runway 30. ठीक है, runway 30. Why? Because on an earth magnetic field a single line is making two angle along with their circumference.
एक साइड पे जहां पे 120 डिग्री बन रहा है, सेम रनवे अपोजिट एंड पे 300 डिग्री बनाएगा। क्यों? क्योंकि ऑन एन सर्कल एक लाइन, ठीक है, ऑन डायमीटर और रेडियस दैट में क्रिएट टू एंगल, ठीक है, दो एंगल ओवर इन सर्कल। So if you look on a first quadrant, second, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास करता है फर्स्ट से, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट से भी पास करेगा ऑन ए डिफरेंट एंगल, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के दो अपोजिट एंड के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। अगर ये यहाँ पे 90 बना रहा है एंगल, तो एट द अपोजिट एंड इट विल मेक 270। 270 माइनस 90 कितना होता है? 180। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के दो एंड के बीच में 180 डिग्री का गैप होता है, ठीक है। सो when someone will say what is going to be the reciprocal of runway 27, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, उल्टा। तो इफ आई से what is going to be reciprocal of runway 27, what is going to be the reciprocal of runway 12, अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर आप मेरे से रेसिप्रोकल लेकिन पूछ क्यों रहे हो, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, कहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। आपने रनवे पे देखा ना कि हम रनवे के दोनों एंड का यूज करते हैं, तो रनवे का एक एंड दूसरे के रेसिप्रोकल रहेगा। एक साइड रनवे का एंगल अगर 27 है तो दूसरे साइड रनवे 09 होगा, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सो यस सर। रनवे का डिजिग्नेशन हम लोग उसके एंगल से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला रनवे 24, तो ये कितना एंगल बनाएगा अर्थ सरफेस के साथ? पापा रोमियो किलो, रनवे 24 मतलब कितने डिग्री का एंगल? ओके, सियरा में जूलियट रनवे 6 डिग्री, नहीं रनवे 24, रनवे 24 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इसका एंगल 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 रेसिप्रोकल नहीं, 240 कितने डिग्री 240 का एंगल बना? 240 240। 240 रनवे 22 220 220, वेरी गुड। रनवे 14 140 140, होल्ड ऑन अ सेकेंड, पापा रोमियो किलो, रनवे 16 160 degree. very good. So now if someone will tell कि find out the reciprocal of runway, और आपको दे दिया गया है रनवे नंबर, तो फर्स्ट जॉब इज कन्वर्ट दैट रनवे नंबर टू द एंगल। पहले आप उसके रनवे नंबर को एंगल में कन्वर्ट करोगे, डन। इफ आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एंगल, अगर वो एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो उसमें हम 180 डिग्री माइनस कर देंगे, एंड इफ दैट एंगल इज लेस देन 180 तो हम उसमें 180 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट है 180 डिग्री। अगर हमारा रनवे कन्वर्जन 180 से बड़ा आता है तो सब्सट्रैक्ट 180 फ्रॉम इट, एंड इफ रनवे कन्वर्जन इज लेस देन 180 देन वी विल ऐड 180 इनटू इट। तो 270 में से हम 180 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90, 9 0, and in 120 if we add 180 it will become 300. So again to convert into runway we will divide it by 10. तो एक हो गया रनवे 09 और दूसरा हो गया रनवे 30। तो वी कैन से रनवे 09 इज रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 27 and runway 12 is reciprocal of runway 30। क्लियर? समझ में आया? तो अगर किसी रनवे के एक साइड में 27 है तो दूसरे साइड में 09 रहेगा। अगर किसी रनवे के एक साइड में 12 है
तो दूसरे साइड में 30 रहेगा। तो अगर हमको एक साइड का एंगल पता है तो दूसरे साइड का रनवे नंबर हम अपने आप निकाल लेंगे। कैन वी डू? हो जाएगा? यस सर। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू गिव 2 क्वेश्चंस। प्लीज डू लेट मी नो फॉर पापा रोमियो किलो you need to convert runway 19er and runway 06, इसका रेसिप्रोकल आप बताओगे। एंड फॉर सियरा रोमियो जूलियट फॉर यू runway 32 and runway 02। बताओ अपने अपने रनवे के रेसिप्रोकल का आंसर। If you have any doubt, you can solve along with me, but try to solve at your own first. If you face any problem, I'll definitely help you out. रनवे 32 का रनवे 4 और रनवे 02 का रनवे 20। रनवे 4 डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 04। 04, बट ये गलत। नेक्स्ट। रनवे 02 का क्या था? रनवे 20। This is right. Find out 3 to 1 more time. Calculation mistake है, 3 सही लगाए हो। कौन सा पहला? अच्छा 32 रनवे 32 300। पापा रोमियो किलो हो पाएगा? Can you solve First, that? Go ahead. first sir, runway 1 और second runway 4 Runway 24। वेरी गुड। रनवे 1 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे रनवे 04। ठीक है, देन सॉल्व मी Sorry, फॉर runway सॉल्व 0। 01, डायरेक्ट 1 नहीं सर वो बोलेंगे। गलत कैसे सर? एक हाँ। साइड अगर 320 डिग्री बनेगा तो दूसरे साइड 40 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक सर्किल पे 360 डिग्री बनता है। वेरी गुड, वेट होल्ड। पापा रोमियो किलो, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ रनवे 32? Sir, give me 2 seconds. प्लीज। कैलकुलेशन मिस्टेक है सूरज, जस्ट हैव अ लुक। थ्योरी सही है, देयर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक, वो आपको नहीं दिखेगा, ह्यूमन फैक्टर। चेक इट अगेन। 14 रनवे 14। Runway 14। ठीक है, डन। नाउ अच्छा चलो अपने से ही सोच के देखो भाई। लाइक यू हैव टोल्ड कि एक साइड से अगर वो 40 डिग्री बनाएगा तो दूसरे साइड से 320 बनाएगा। इज दैट पॉसिबल? नो। सी 40 डिग्री कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 320 डिग्री की तरह फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट का अपोजिट थर्ड जाएगा। अगर आप रनवे पे ड्रॉ भी करोगे, एक्स प्लेन पे अगर हम ड्रॉ करेंगे, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट में थर्ड जाएगा। और थर्ड का लिमिटेशन क्या है? 180 से 270 के बीच में ही रहेगा ना। तो 40 का अपोजिट क्या होगा? 22, 220 डिग्री। और 320 का अपोजिट क्या होगा? 140 डिग्री। और 140 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है, 90 और 180 के बीच में। क्लियर? ठीक, क्लियर। चलो अभी मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके बताता हूँ। आप अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको रनवे का कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले क्या है, हमने पूछा आपसे रनवे 19er का रेसिप्रोकल। तो इसको पहले एंगल में कन्वर्ट करके फिर उसके जो आंसर आएंगे उसको 10 से डिवाइड करके आप रनवे का आंसर निकालोगे। इतना तामझाम करे कौन? हमने आपसे रनवे 19 पूछा ना, 18 कम करो ना डायरेक्ट, रनवे 01। और हमने आपसे क्या पूछा? रनवे 06।
18 से छोटा आएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट भी करोगे तो क्या आएगा 60, तो 180 से छोटा ही है, तो इसमें 18 ऐड कर दो, रनवे 24, डायरेक्ट आंसर। 32 पूछा ना, -84, और दूसरा क्या था 6, ऐड कर दो, इसमें 180 क्या आया 24। इसके अलावा आता टेबल यू विल गेट हाउ रनवे रेसिप्रोकेशन इज, ठीक है ना। सबसे स्टैंडर्ड जो है रनवे 27 के अपोजिट होता है रनवे 09er, सबसे स्टैंडर्ड। ज्यादातर एयरपोर्ट आपको 09 ही देखेंगे इन इंडिया, ठीक है, ज्यादातर एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इक्वेटर पे रनवे ज्यादा बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। अगर पोलर रीजन में पोल के वो बना देंगे ना एयरपोर्ट, तो वहां पे विंड्स बहुत तेज चलेगा। आप अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे या इंडिया के मैप पे देखते हो, तो जनरली क्या सुनते हो, जिसे इंडिया में मॉनसून आता है तो किधर से आता है, बंगाल से या फिर तमिलनाडु साउथ साइड से। क्यों आता है? क्योंकि पोलर पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, एयर ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ। एयर के ट्रेवल करने का क्या रिक्वायरमेंट है? हॉट एयर ट्रेवल टुवर्ड्स कोल्ड, राइट। हॉट एयर, गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा उसको रिप्लेस करती है। सो व्हेन देयर इज ए समर, तो मॉनसून आता है। मॉनसून क्यों आता है? क्योंकि हमारे साउथ में सी है, तो गर्म हवा समुद्र से ऐसा उठ के हमारे पास लैंड साइड में मॉनसून लेके आती है। एंड इन द विंटर सीजन वी आर हैविंग कोल्ड एयर, किधर से? रशिया साइड से, यूरोप साइड से, इसलिए नॉर्थ इंडिया में ठंडी रहती है, साउथ वाले बच जाते हैं, ठीक है। सो अगर पोलर वाइज रन जाएगा तो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा विद द एयर। तो सेफ कौन सा पड़ता है? इक्वेटर पे बनाना, ठीक है। इक्वेटर पे रनवे हमेशा सेफ पड़ता है। सो रनवे 27 का अपोजिट है रनवे 09er। 26 का अपोजिट होगा 08, देखो कम होता जाएगा, 07, 06, बस। रनवे 28 110, 29er 11, 30 12, बस। आपको इतने ही एयरपोर्ट दिखेंगे रनवे वाले, इससे ज्यादा का रनवे डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करना आपको आ ही गया। अगर कभी शॉर्टकट मारना हो तो भी याद रखो, ठीक है। 27 का 9 याद रखो, और अगर 27 से ऊपर का पूछा तो एक एक जोड़ के चले जाओ। सपोज सडनली समवन आस्क्ड कि 30 का अपोजिट क्या होगा, आपको याद है 27 का है 9, तो 30 का 3 जोड़ दो 12, या फिर सब्सट्रैक्ट 18। वाई 18? क्योंकि 180 का ही तो शॉर्टकट है 18। क्लियर? इज दैट टॉपिक क्लियर टू यू? So whenever in question, if you very good, if you require opposite of a runway, क्यों आपको चाहिए होगा? अब आओ बात, आपको क्यों रेसिप्रोकल निकालने की जरूरत पड़ी? आप यहाँ पे टेक ऑफ करने के लिए आए, आपको पता चला विंड्स का डायरेक्शन तो अपोजिट है, मीन्स जिस टाइप में, जिस साइड में आपका एयरक्राफ्ट पार्क है उसी साइड में विंड्स फ्लो कर रहा है, देन दैट इज नॉट अ फेवरेबल विंड्स फॉर यू। तो आपको दूसरा एंड चाहिए टेक ऑफ के लिए। इस साइड है रनवे 27, उस साइड है रनवे 09er। तो आप एटीसी को ये नहीं बोलोगे कि रिक्वायर रेसिप्रोकल ऑफ रनवे फॉर डिपार्चर। रेसिप्रोकल क्या है वो आप उसको निकाल के बताओ, ठीक है। और हम लोग एग्जाम दे रहे हैं इसलिए निकाल के बताना है। रियल लाइफ में आप डायरेक्ट बोलो रिक्वेस्ट अपोजिट एंड ऑफ रनवे फॉर द डिपार्चर, तो आपको बोलेंगे ठीक है जाओ। बट इन एग्जामिनेशन वी आर अ स्टूडेंट, तो वी नीड टू फाइंड आउट एंड उसको डायरेक्ट आंसर निकाल के देना है, ठीक है। ऐसे रॉ मिल्क दे के बोलेंगे इससे घी निकाल लो, नहीं, पूरा घी निकाल के हमको बताना है, ठीक है। रिक्वेस्ट runway 09er for the departure, winds are not favorable on runway 27, like this. So this was the reciprocal of runway. Now the next topic is chart reading techniques, but before going there we'll have a break of few minutes, ठीक है। We can take break till 2105, ठीक है, and then we'll be back.
ठीक है. So you can take a break till 2205, and then again we'll be back as per our regular classroom timing. ठीक है. So take a break of 5 minutes.
Please confirm if my screen is being shared now. And Yes, sir. done. ठीक है. Yes, sir. So our next topic as per lecture plan will be chart reading techniques. ठीक है. We'll have a look how you are going to read the chart. I was saying there are two charts given in the examination. We'll have a practice on both one by one. Don't be worried कि कैसे होगा. That is my responsibility to take you to the practices. So the first chart we are having will go by the old newer one. Why? Because that is being asked frequently. तो आपको दो चार्ट मिलेगा. एक पे लिखा रहेगा सिंपल एटीएस रूट चार्ट और दूसरे पे लिखा रहेगा वर्जन 2. तो वर्जन 2 वाला जो चार्ट है दैट इज लेटेस्ट. ठीक है. विच इज बीइंग यूज्ड इन रिसेंट डेज. तो इससे हमको पहले प्रैक्टिस करेंगे, देन विल मूव अहेड. विल टेक एन एग्जांपल ऑफ मुंबई एयरपोर्ट एंड देन विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. नाउ पहले जब हम कोई चार्ट बनाते हैं, ठीक है, all stations, Delhi Tower, how do you read? All stations, Delhi Tower, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Try answering it. All stations, Delhi Tower, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? All stations. All station, Delhi Tower, Radio 5, and you. But I have told all stations means हमने क्या किया, हमने ब्रॉडकास्ट की. अच्छा, अपना अपना देना है. ठीक है. हमने सबको बोला ऑल स्टेशंस यानी आप सब लोग, और मेरा नाम है दिल्ली टावर. हाउ डू यू रीड? तो इसके रिस्पॉन्स में आप अपने स्टेशन का नाम लोगे. आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? दिल्ली टावर, विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट, रेडियो 5. यानी इन सारे स्टेशंस में से सियरा रोमियो जूलियट जो है वो रिप्लाई कर रहा है एंड ही इज सेइंग आई एम रीडिंग यू 5. तो सारे स्टेशन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे. ठीक है. यू विल से रीडिंग यू 5 विक्टर टैंगो सियरा रोमियो जूलियट, मतलब सियरा रोमियो जूलियट ने आपको 5 के स्केल पे सुना. रीडिंग यू 4 विक्टर टैंगो पापा रोमियो किलो, यानी पापा रोमियो किलो ने आपको 4 के स्केल पे सुना. रीडिंग यू 3 विक्टर टैंगो सियरा ऑस्कर होटल, यानी सियरा ऑस्कर होटल ने आपको 3 के स्केल पे सुना. तो आप अपना रिप्लाई दोगे कि आपने मेरे को कैसे सुना. डन. तो इफ एटीसी सेज स्टेशन ऑल स्टेशंस दिल्ली कंट्रोल, ठीक है, ध्यान से सुनो, दिस इज दिल्ली कंट्रोल. हाउ डू यू रीड? Delhi Control, Vector Tango Sierra Romeo Juliet, Radio 5. Another station. Delhi Control, Radio 5, Train 5, Vector Tango, Papa Romeo Kilo. It will work. So
सॉरी फॉर दैट, मैंने अपने चार्ट पे कुछ तो स्क्रिबल कर लिया विच इज नॉट बीइंग एडिटेड. ओके, we'll move ahead now. कोई और now just have a look on, ठीक है, just have a look on this chart. जब हम कोई मैप बनाते हैं, ठीक है, या जब भी हम कोई सा चार्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें ये डिस्क्राइब करते हैं कि which symbol is going to represent what, किस सिंबल का क्या मतलब है, ठीक है, किस लोगों का क्या मीनिंग निकल के आएगा. आपने कभी स्कूल में प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे या स्कूल पे कोई चार्ट्स बनाए होंगे, तो वहां पे आपने किया होगा क्या कि आप जो लोगो रखते हो, लाइक आपने वहां पे नदी बनाए, पहाड़ बनाए, ब्रिज बनाया, कोई स्कूल बनाया, कोई टेम्पल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, तो उन सारे जो आपने एस्टेब्लिशमेंट्स किए उसको आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसका कुछ ना कुछ आप कोड बताते हो, राइट. कि अगर मैं टेम्पल बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा, ट्रायंगल में झंडा लगा हुआ, हॉस्पिटल में ऐसा बनाऊंगा, नदी में ऐसा कर दूंगा, पहाड़ में ऐसा ऐसा कर दूंगा, ये रहा पहाड़. स्कूल बनाना है तो सपोज इस तरह से मैंने एक स्कूल बना दिया, लाइक दैट, कोई भी है. यानी आप जो सिंबल या लोगो आप चार्ट में यूज कर रहे हो उसका आप लेजेंड्स लिखते हो कि किस सिंबल का क्या मतलब है. नहीं तो बाहर वाला कोई कैसे जानेगा कि किस सिंबल का क्या मतलब है. डन. सो ओवर दिस चार्ट जस्ट हैव अ लुक आउट. जितने भी ब्लैक कलर के थिन लाइन आपको दिख रहे हैं ये सारे, दीज आर द रूट्स, ठीक है. जैसे रोड की कनेक्टिविटी होती है ना, सिमिलरली एयर रूट का कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होता है. तो अगर हमको मुंबई से भोपाल जाना है, ठीक है, if I need to go from Mumbai to Bhopal, तो I am having one route, ये ब्लैक कलर का लाइन सीधा सीधा. और जैसे रोड में कुछ ना कुछ नंबर होता है, उसी तरह रोड एयर रूट्स में भी कुछ ना कुछ नंबर होते हैं. देखो यहाँ पे लिखा है ना, विस्की 10 सियरा, विस्की 10 नवंबर, विस्की 12 सियरा, अल्फा 474. तो ये सब हो गए इस रूट के कॉल साइन. यानी आप इस रूट को किस नाम से बुलाओगे. जनरली आप बोलते हो ना NH7, NH37, NH38, इस टाइप से. सिमिलरली इफ आई विल एक्सप्लेन कि दिल्ली से मुंबई जो रूट जा रही है उस रूट का कॉल साइन क्या है, उस रूट को हम किस नाम से बुलाएंगे, देन दैट इज नोन एज विस्की 10 सियरा, लाइक दिस. क्लियर. तो थिन ब्लैक कलर के लाइन, it represents the roots. Clear? Yes. Now, next one is पेंटागोनल शेप के जितने सारे भी आपको सिंबल दिख रहे हैं. पेंटागन, पेंटागन मतलब क्या होता है, जिसके 5 क्या हो, पेंटागन का 5 एजेज हो अगर, तो दैट इज नोन एज पेंटागन. ठीक है, 5 एजेज जिसके हो दैट इज नोन एज पेंटागन. तो आपको पेंटागोनल शेप के जितने सारे एयरपोर्ट दिख रहे हैं, इट मीन्स उस एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन इंस्टॉल किया गया है, यानी उस एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन अवेलेबल है. ठीक है, डन. उस स्टेशन पे, उस एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन लगा के रखा है. VOR का यूज हम लोग नेविगेशन में क्या करते हैं बताता हूँ. व्हेन वी आर नॉट हैविंग GPS, तो हमने क्या किया था कि ग्राउंड पे अलग अलग एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन इंस्टॉल कर दिए थे. ठीक है, अलग अलग एयरपोर्ट पे. तो सपोज अगर हमको जाना हो इस स्टेशन से लेके पॉइंट नंबर 2 तक, तो विल गो बाय कनेक्टिंग VOR टू VOR, कि पहले वहां से यहाँ चले जाएंगे, फिर वहां से यहाँ चले जाएंगे, एंड देन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे. तो ग्राउंड पे जो एंटीना हम लोग लगा के रखते थे ताकि हमको रेफरेंस मिलता रहे कि अभी हमने 20% जर्नी कंप्लीट कर ली, 50% जर्नी कंप्लीट कर ली, 80% जर्नी कंप्लीट कर ली, और अब अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं. तो ग्राउंड पे हम लोग VOR स्टेशन लगा के रखते थे. जरूरी नहीं है कि हर एक एयरपोर्ट पे VOR स्टेशन लगा हुआ ही हो, लेकिन अगर किसी स्टेशन पे VOR स्टेशन लगा हुआ है,
अगर किसी एयरपोर्ट पे व्यूअर स्टेशन लगा हुआ है तो उसका सिंबल होगा पेंटागोनल शेप में। क्लियर? सो ऑलमोस्ट 90% एयरपोर्ट पे व्यूअर स्टेशन रहते हैं, बट 10% में नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया? तो पेंटागोनल Yes. शेप जेंट्स उस एयरपोर्ट को जिस एयरपोर्ट पे व्यूअर स्टेशन भी इंस्टॉल्ड है। इफ यू सी व्यूअर स्टेशन क्या होता है सर, देन आई विल शो यू व्हाट इज एक्चुअल व्यूअर स्टेशन लुक लाइक। ठीक है, गूगल ही करता हूँ बिकॉज इट इज वेरी कॉमन। आपको एक राउंड कलर के 36 एंटीना दिखेंगे, 36 एंटीना इज देयर ऑन अ व्यूअर स्टेशन, इस टाइप का दिखेगा आपको। ठीक है, कंफर्म इफ पिक्चर इज क्लियर टू यू। दिख रहा है आपको? Yes. इस टाइप को 36 एंटीना दिखेंगे। हर एक एंटीना 1 डिग्री का रेडियल रिप्रेजेंट करता है, 1 डिग्री का। तो 36 में 360 डिग्री, यानी पूरे अर्थ के डायरेक्शन को ये कवर कर लिया लाइक दिस। तो हो सकता है ये किसी एयरपोर्ट पे हो सकता है ये किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं भी हो। ठीक है, जहां जहां कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट पड़ी वहां वहां पे लगाया गया। सो ऑन अ मैप pentagonal shape represents the viewer station. Clear? Now, apart from the station, is there anything? No, sir. Okay. Apart from the viewer station, if you see or if you look कि कुछ ऐसे भी एयरपोर्ट हो सकते हैं जहां पे व्यूअर स्टेशन नहीं है। जस्ट हैव अ लुक ऑन सोनगढ़, यहाँ पे व्यूअर स्टेशन नहीं है, तो इसका रिप्रेजेंट इन्होंने सर्कुलर सर्कल बना के कर दिया। इट इज ओके। प्लस आप एक बार ध्यान दो, मुंबई से नागपुर आपको औरंगाबाद पे दिखा व्यूअर स्टेशन है, फिर बीच में एक सिटी दिखी ब्लैक ट्रेंगल, फिर यहाँ पे दिखा ब्लैक ट्रेंगल, एंड इसके कुछ अजीब अजीब से नाम है। एक का नाम है ओपाका, एक का नाम है ड्यूबॉक्स। आप बोलोगे सर आई नो द महाराष्ट्र वेरी वेल, नागपुर और मुंबई में ओपाका नाम से तो कोई जगह है ही नहीं। ये हम क्या पबजी खेल रहे हैं कि पोचिंकी और कौन कौन से होते हैं उसमें नाम अलग अलग? तो क्या ये वो वाला स्टेशन दे रहे हो क्या, हाइपोथेटिकल? यस, दिस इज हाइपोथेटिकल चार्ट। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये BGMI या पबजी जो भी गेम है वो खेला होगा तो उसमें अलग अलग नाम रहते हैं ना। मुझे तो 2-4 याद भी नहीं है, एक ही याद आ रहा है अभी। तो उसी तरह से नाम आपके अजीब अजीब हो सकते हैं। मुंबई से नागपुर रास्ते में जितने सारे स्टेशन पड़ेंगे, ठीक है, जितने सारे स्टेशन पड़ेंगे सबको कंबाइनली बोला जाता है वे पॉइंट्स, यानी आपके रास्ते में पड़ने वाले पॉइंट्स, वे पॉइंट्स। सो इफ आई आस्क यू व्हाट आर द वे पॉइंट्स फ्रॉम मुंबई टू नागपुर, so you can say Opaka, Aurangabad, Dewbox. These 3 are the waypoints. Clear? And all these 3 waypoints are also known as MRP, Mandatory Reporting Points. यानी आप जब इसके ऊपर से गुजरोगे तो आप यहाँ पे अपना पोजीशन रिपोर्ट करते हुए जाओगे कि सर मैं ओपाका पहुंच चुका हूँ, मैं औरंगाबाद पहुंच चुका हूँ, मैं डीबॉक्स पहुंच चुका हूँ और अब नागपुर पहुंचने वाला हूँ। तो दैट इज नोन एज MRP, मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स। क्लियर? Yes, sir. ना यू कैन सी सर सर्कल वाले को तो यहाँ पे NDB लिखा हुआ है, आपने वे पॉइंट्स बताए, आपने MRP बताए, वो तो है भी नहीं। तो NDB मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल बीकन। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि किसी फील्ड में, ओपन फील्ड में कोई एक टावर लगा के छोड़ दिया हो, वहां पे कोई एयरपोर्ट नहीं हो, नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टावर लगा के छोड़ दिया कि इसके आसपास से अगर कोई एयरक्राफ्ट क्रॉस करेगा ना तो एक पोजीशन हम कैप्चर कर लेंगे। अच्छा, हमारा एयरक्राफ्ट इस स्टेशन से पास कर चुका है, अब आगे किसी दूसरे स्टेशन के लिए जाए। बट NDB का हाइपोथेटिकली या रियल लाइफ में भी वैसा कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, उसको हम लोग यूज करते हैं एज एन MRP। तो किसी भी 2 स्टेशन के बीच में जितने भी टाइप के शेप एंड सिंबल मिले, आपको सर्कल, ट्रायंगल या पेंटागन से ज्यादा शेप एंड सिंबल नहीं मिलेंगे।
तो इन तीनों शेप एंड सिंबल के जितने भी डायग्राम मिले उसको कंबाइनली बोला जाता है MRP, मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स। Am I clear on that? Yes, sir. Then who is going to tell me how many mandatory reporting points in between Mumbai to Bhopal along with this line? देखो, try answering some of them. मैं उसको ग्रीन कलर से सर्कल करता हूं, पढ़ के बताओ। ग्रीन नहीं, रेड हो रहा है। AKTIV सोनगढ़ हाँ और इंदौर। हाँ, तो ये होगा एक्टिव या एक्टिव, जो आप बोलो, सोनगढ़, इंदौर। क्लियर? आपको नाम ऐसे अजीब अजीब से मिलेंगे, जस्ट हैव अ लुक। एक का नाम है अपानो, एक का नाम है डोटिप, बोफिन, ड्यूबॉक्स, जोबॉक्स, ऐसे ऐसे नाम है, आपको दिखेगा आगे, सबक। ठीक है, तो ये सारे इमेजनरी पॉइंट्स हैं। बोदार, here you can see, तो ये सारे इमेजनरी पॉइंट्स हैं। किट्टू, पॉम्फ्रेट, ठीक है, ये सारे इमेजनरी पॉइंट्स हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड जब मैंने अपने एयरक्राफ्ट में देखा कि वहां पे जो चार्ट्स होते हैं उसमें भी ऐसे अजीब अजीब से ही नाम होते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू डू हैव अ प्रैक्टिस ओवर दिस। तो ये सब अजीब अजीब से नाम है और सब मिलके कहे जाते हैं MRP, मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स, यानी इस पॉइंट के ऊपर रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। मैं क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट, ग्रीन कलर का लाइन, आपको थिक ग्रीन कलर का लाइन जहां कहीं भी मैप में दिखेगा, दैट इज FIR बाउंड्री। FIR क्या होता है? विक्टर टेंगो पापा रोमियो किलो। FIR का फुल फॉर्म क्या है? ओके, Sierra Romeo Juliet, what is the full form of FIR? Flight Information Region. Flight Information Region, very good. So thick green color का line, this will represents FIR boundary. So here you can see this green color line is the boundary between two FIR. कौन कौन से? दिल्ली FIR and मुंबई FIR, like this. तो इसी तरह से आपको किसी भी चार्ट में कहीं भी थिक ग्रीन कलर का लाइन मिलेगा, दैट इज ए बाउंड्री बिटवीन टू FIR रीजन। देखो यहाँ पे ये जो थिक ग्रीन कलर का लाइन है, दैट इज अ पार्टीशन बिटवीन दिल्ली FIR एंड कोलकाता FIR। ठीक है, नीचे वाला दिल्ली FIR एंड मुंबई FIR। ठीक है, इधर मुंबई FIR एंड कोलकाता FIR, लाइक दिस। तो थिक ग्रीन कलर का लाइन रिप्रेजेंट्स FIR बाउंड्री। माय क्लियर? Yes, sir. मूविंग टू द नेक्स्ट, थिक ब्लू कलर का लाइन। ठीक है, थिक एंड ब्लू, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स TMA। देखो यहाँ पे देखा ना आपने TMA। TMA का मतलब टर्मिनल मूवमेंट एरिया। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लो, टर्मिनल मूवमेंट एरिया, और अल्टरनेटिवली दिट इज नोन एज कंट्रोल बाउंड्री। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि कंट्रोल किस किस एरिया में कमांड करेगा। सो दिस इज नोन एज कंट्रोल बाउंड्री, यानी ये वाला एरिया मुंबई कंट्रोल के अंदर में आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे एयरपोर्ट्स पे कंट्रोल के ऑफिस नहीं है। क्लियर? सो मैं बाउंड्री को हाईलाइट करता हूं विद ग्रीन कलर। चलो, ब्लू के ऊपर ग्रीन। मुंबई का कंट्रोल बाउंड्री इतना दूर का एरिया, क्यों? क्योंकि यहाँ के आसपास के एयरपोर्ट के पास कंट्रोल बाउंड्री नहीं है। नागपुर का कंट्रोल बाउंड्री देखो, लाइक दिस। सो कंट्रोल बाउंड्री में बी इनक्लोज्ड और मे बी ओपन, लेकिन जिस भी एयरपोर्ट के पास कंट्रोल ऑफिस रहेगा उसके आसपास ये कंट्रोल बाउंड्री ड्रॉ किए हुए आपको मिलेंगे। देखो, ये हो गया अहमदाबाद का कंट्रोल बाउंड्री, ये ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है।
दिल्ली कंट्रोल बाउंड्री किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, बट दैट विल बी इनक्लोज्ड। नागपुर कंट्रोल बाउंड्री, दिख रहा है? सो इस आसपास एयरपोर्ट पे अगर कोई भी एयरक्राफ्ट दूर दूर तक उड़ेगा तो नागपुर कंट्रोल उस पर मॉनिटरिंग रखेगा। मैं क्लियर? कंट्रोल बाउंड्री समझ में आया आपको? आओ अब अच्छे से समझो। आपको दिख रहा होगा किसी किसी एयरपोर्ट के पास 2 सर्कल है, ठीक है? देखो डॉटेड सर्कल्स है ना, 2 हैं। और किसी किसी के पास, हाँ किसी किसी के पास एक ही है, भोपाल, ठीक है? दिख रहा है? ये अपन भी मैंने कब लिखा, आज ही लिखा हूं और आज ही मिट नहीं रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, मैं दूसरा चार्ट ही ओपन कर लेता हूँ, कंफ्यूजन रहे ही नहीं। जस्ट अ सेकेंड। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि किसी किसी एयरपोर्ट के पास आपको 2 सर्कल दिखेंगे एंड किसी किसी एयरपोर्ट पे एक सर्कल है। तो इसका क्या मतलब है, अच्छे से समझो। जो इनर सर्कल है किसी भी एयरपोर्ट का, पापा रोमियो किलो, एम आई ऑडिबल टू यू? से अफर्म, नेगेटिव, एनीथिंग? ओके। सो एयरपोर्ट पे 2 सर्कल, जो इनर सर्कल है, छोटा वाला सर्कल है, इसको बोलते हैं CTR और इसका मतलब होता है कंट्रोल जोन। ध्यान रखना, CTR मतलब कंट्रोल जोन। और जो बड़ा वाला सर्कल है दैट इज नोन एज CTA, कंट्रोल एरिया, ठीक है? कंट्रोल एरिया। छोटे वाले सर्कल को CTR, बड़े वाले सर्कल को CTA। इतना तक समझ में आया? अब जो इनर सर्कल है, जो कंट्रोल जोन है, ठीक है? कई बार लोग CTR को एरिया पढ़ देते हैं, नहीं, CTR वाला है जोन और A से होता है ना एरिया, तो CTA है एरिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो, जो इनर सर्कल है ये आता है टावर के ज्यूरिडिक्शन में, और जो बड़ा वाला सर्कल है ये आता है अप्रोच के ज्यूरिडिक्शन में। कंट्रोल तो पूरे एरिया का माई बाप है, ठीक है? कंट्रोल कहां तक देखेगा, जस्ट हैव अ लुक। नागपुर का एग्जांपल लेके समझते हैं। नागपुर कंट्रोल इस पूरे एरिया को, ठीक है? छोटे वाले सर्कल को टावर और बड़े वाले सर्कल को अप्रोच। फिर आप बोलोगे सर SMC क्या करेगा? SMC तो ग्राउंड का मूवमेंट देख रहा है, नाम ही है ना ग्राउंड, ग्राउंड का मूवमेंट देख रहा है। तो छोटे वाले सर्कल का किंग कौन? टावर। और बड़े वाले सर्कल का किंग कौन? अप्रोच। और कंट्रोल दादाजी, वो पूरे एरिया में, ठीक है? अपने क्लियर टिल नाउ? अब आता है मेन चीज, इसको अच्छे से। कंट्रोल या टावर या अप्रोच, इन लोगों के ज्यूरिडिक्शन का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। दैट लिमिटेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस और इन द फॉर्म ऑफ अल्टीट्यूड और बोथ। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? आप छोटे वाले सर्कल में टावर को कॉल करोगे, लेकिन कहां तक? 50 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 5000 फीट, यानी 5000 फीट। और यहां पे देखो, इस अंदर वाले सर्कल का डिस्टेंस कितना है? 25 नॉटिकल माइल। यानी आप नागपुर टावर को कांटेक्ट करोगे, लेकिन ध्यान में 2 चीज रखोगे, डिस्टेंस और अल्टीट्यूड। किसी भी एयरपोर्ट को कॉल करने से पहले 2 चीज ध्यान में रखना, डिस्टेंस और अल्टीट्यूड। तो हम नागपुर टावर को कॉल करेंगे कहां तक? 25 नॉटिकल माइल के अंदर
और 5000 फीट के नीचे नीचे, ठीक है। हम नागपुर अप्रोच को कॉल करेंगे कब? 50 नॉटिकल माइल के अंदर और 5000 फीट के ऊपर, ठीक है। ये जो A अपॉन B के फॉर्मेट में लिखा है ना, इसका मतलब लिमिट्स 50 अपॉन CTR। तो अपर लिमिट होता है A, यानी हमारे नागपुर टावर का अपर लिमिट है 5000 फीट, और CTR मतलब 0 फीट ग्राउंड से। तो 0 से लेके 5000 फीट तक नागपुर टावर, और उसके बाद क्या है FL50 अपॉन TMA ऊपर में, ठीक है। अपर लिमिट में चाहे TMA लिखा रहे, चाहे CTA लिखा रहे, चाहे CTR लिखा रहे, ऊपर अगर किसी भी टाइप का नंबर नहीं दिया हुआ है, मतलब इनफाइनाइट, तो 5000 फीट से ऊपर कितना भी हम फ्लाई करें, हम कॉल करेंगे नागपुर अप्रोच को। अब नागपुर कंट्रोल को कब कॉल करेंगे? नागपुर कंट्रोल को हम कॉल करेंगे जब हम 50 नॉटिकल माइल के बाहर चले जाएं और हमारा अल्टीट्यूड 15,000 फीट से ऊपर रहेगा, तब हम कॉल करेंगे नागपुर कंट्रोल को, ठीक है। सो कंट्रोल जोन में टावर, उसके बाद अप्रोच, और उसके बाद कुछ भी रहे कंट्रोल। पापा रोमियो किलो, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Similarly, we'll have look on the second chart type. दो टाइप के चार्ट है ना, तो we'll have a look on second chart type. वहां पे भी सेम लॉजिक लगता है, बस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। किसका? अल्टीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन का। तो हम लोग नागपुर का ही एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। देखो यहां भी सर्कल बनाया हुआ है, बट ये वाला सर्कल थोड़ा फेडेड है और कंटिन्यूअस है, राइट। हीटिंग किधर गया? गाइस, सर ये सब याद कैसे रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस कर करके, ठीक है। प्रैक्टिस। मैप दिया जाएगा सर उधर? मैप आपको दिया जाएगा हार्ड कॉपी क्वेश्चन के बगल में, ठीक है। क्वेश्चन के बगल में आपको मैप दिया जाएगा। आपको बस यही याद करना है कि कहाँ पे किस किसी को कॉल करेंगे, और वो आपको प्रैक्टिस से इंप्रूव हो जाएगा। बिल्कुल घबराओ नहीं, जस्ट हैव अ वेट, मैं आपका भी प्रैक्टिस करवाऊंगा ना। आप सपोज आपने अभी, आपसे मैंने जैसे रनवे का क्वेश्चन पूछा, तो हो सकता है आपने आज तुक्का मार दिया, कल फिर पूछूंगा, परसों फिर पूछूंगा। कितनी बार, कितनी बार आप अपने मन से या गूगल से देख के कहीं से भी बोलोगे? तो अगर आपको आंसर करना रहेगा तो आपको ये समझना पड़ेगा। सिमिलरली जब हम चार्ट का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो याद हो ही जाएगा, ठीक है। नाउ हेयर ऑल्सो जो इनर सर्कल है दैट इज नोन एज CTR, और उसका किंग कौन? टावर। कहां तक? देखो यहां पे किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? बार के फॉर्मेट में। A अपॉन B का फॉर्मेट नहीं, वहां पे कैसा था? 50 अपॉन CTR, यानी A/B फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, लेकिन इधर लिखा हुआ है बार के फॉर्म में। 50 बार यानी अपर लिमिट इज 5000 फीट, जिसके ऊपर में लगा दिया लिमिट, ठीक है। इस लाइन को आप लोग समझो लिमिट, यानी अपर लिमिट हो गया 5000 फीट। अगर वही चीज सेम रहे नीचे, मतलब लोअर लिमिट इज फिक्स्ड और ऊपर आपका फ्री है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, क्लियर हो जाएगा। 50 के ऊपर लगा दिया लिमिट, यानी 5000 फीट इसका अपर लिमिट, और इसका लोअर लिमिट है 5000 फीट, यानी इसमें हम 5000 फीट से ऊपर कहीं भी रहेंगे तो कॉल करेंगे। क्लियर? इसका लोअर लिमिट है 10,000 फीट, यानी 10,000 के फीट हम कहीं भी रहेंगे तो कॉल करेंगे। डन? समझ में आया? नाउ यस सर। we'll ask Papa Romeo Kilo. First you will reply me and then I'll go to Suraj first, then again. If I am, ठीक है, look at the Nagpur अच्छे से, I'll zoom it much enough so that it will be clear to you.
if I am at altitude 4000 feet and 20 nautical mile अवे फ्रॉम नागपुर, नागपुर के सेंटर से 20 नॉटिकल माइल दूर है, तो किसको कॉल करेंगे? टावर, नागपुर टावर को। वेरी गुड। एंड इफ आई एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 नॉटिकल माइल और हमारा अल्टीट्यूड है 7000 फीट, तो किसको कॉल करेंगे? कंट्रोल, आराम से आराम से। अप्रोच को, टावर के बाद अप्रोच। क्यों? बड़ा वाला सर्कल को कौन देखता है? अप्रोच। तो 40 नॉटिकल माइल यानी वी आर समहाउ एट दिस रेड डॉट, बड़े वाले सर्कल में अप्रोच। क्लियर? नाउ इफ वी आर एट 60 nautical mile and altitude is 12,000 feet, whom we will call? कंट्रोल, Control. Very good. Now Suraj, for you, sorry, Sierra Romeo Juliet, for you, if we are at 20 nautical mile and altitude is 3000 feet, whom we will call? टावर, Okay, 40 nautical mile, 7000 feet. 40 अप्रोच, 70 nautical mile, 12,000 feet. कंट्रोल, Control. Now you only 20 nautical mile, 7,000 feet. लगाओ दिमाग। 0 नॉटिकल माइल मतलब अंदर में 7000 फीट ऊपर में। अप्रोच, Approach. This call will to up. Why approach? क्योंकि टावर का ना लिमिट है 5000 फीट और 25 नॉटिकल माइल। अप्रोच जो अप्रोच अंदर तक के एरिया को भी कवर करेगा पूरा। ठीक है। सो अगर हम इनर सर्कल के अंदर में भी किसी एक भी पैरामीटर से आउट हो गए, आइदर दैट इज अ डिस्टेंस और दैट इज एन अल्टीट्यूड, दोनों में से कोई भी मिसमैच हुआ, तुरंत विल मूव टू द नेक्स्ट एटीसी। और इसीलिए हम ऑर्डर को रटवाए शुरू में। एग्जाम में सीधे बोलेगा कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी, तो नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट का एक ऑर्डर है, ग्राउंड, टावर, अप्रोच एंड कंट्रोल। टावर के नेक्स्ट अप्रोच, अप्रोच के नेक्स्ट कंट्रोल। क्लियर? तो अगर हम 7000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं यानी 5000 फीट का पैरामीटर क्रॉस हो गया, बट हमारा डिस्टेंस क्या है? 20 नॉटिकल माइल, तो किसको कॉल लगेगा? टावर को, सॉरी अप्रोच को। क्लियर पापा रोमियो किलो? यस सर। Then if we are at 40 nautical mile and our altitude is 3000 feet, अप्रोच सर। approach. Very good. And if we are at 7000 feet and 70 nautical mile, कंट्रोल, very good. So this is the things ahead of you. One more question from you. If we are at 20 nautical mile and at 10,000 feet, whom we will call? कंट्रोल, अप्रोच, एक बार फिर से, why approach? बताओ। डोंट वरी, ट्राई। क्यों बोला अप्रोच? क्या रीजन है? हम कौन कौन से पैरामीटर देखते हैं? डिस्टेंस और अल्टीट्यूड दोनों, राइट? डिस्टेंस कितना है? 20 नॉटिकल माइल। अल्टीट्यूड कितना है? 10,000 फीट। सो आराम से देखेंगे, 20 नॉटिकल माइल यानी छोटे वाले सर्कल के अंदर, अल्टीट्यूड कितना है? 10,000 फीट।
बट टावर का लिमिट क्या है? 5000 ही है टावर का लिमिट। तो टावर को हम कॉल नहीं करेंगे, किसको कॉल करेंगे? नेक्स्ट एटीसी के। टावर के बाद नेक्स्ट कौन? अप्रोच। क्लियर? सपोज आपके घर में ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर हैं, अपने पापा से कुछ पैसे मांगे, मेला घूमने जाना है, दुर्गा पूजा देखने जाना है, पापा ने नहीं दिए, योर नेक्स्ट अप्रोच विल बी होम? ग्रैंडफादर, दादाजी पैसे दो, राइट? सिमिलरली टावर की रेंज से बाहर हो गया, अप्रोच को जाएगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। 7000 feet 10 nautical mile distance, whom we will call? Approach. Approach. Very good. Why approach? Please explain. Because 7000 feet ना, so it's 5000 feet से ऊपर है और 10 speed है और डिस्टेंस है, इसीलिए। क्या है? क्या है? Say again. 10 क्या है? आराम से एक एक पैरामीटर को एक्सप्लेन। 7000 फीट तो क्या है? 7000 फीट हो गया, क्यों? पहले डिस्टेंस 7 हो गया। नहीं, 7000 फीट इज नॉट अ डिस्टेंस, दैट इज अ हाइट, अल्टीट्यूड। हाइट हाँ और तो 10 नॉटिकल स्पीड। नहीं, 10 नॉटिकल माइल इज ए डिस्टेंस, नॉट्स होता है स्पीड, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ, सो अगर हम अल्टीट्यूड वाइज और लेंथ वाइज किसी से दूर भागते हैं ना, तभी हम इसको कंट्रोल मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। सो अल्टीट्यूड क्या है? 7000 फीट, यानी हमारा टावर 5000 फीट तक ही कंट्रोल करता है, यानी टावर के रेंज से हम बाहर हो गए। तो जब टावर के रेंज से बाहर हो गए तो अगला कौन? अप्रोच। क्लियर? हाँ यस। सो नाउ वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, इफ यू से और नॉट से विल मूव अहेड, ठीक है? ज्यादा लोड देने से भी कई बार कंफ्यूज होते हैं लोग। 40 नॉटिकल माइल एंड 3000 feet. Go ahead. अप्रोच। Approach. Very good. ठीक है, so हाँ, नहीं कुछ। so that's all for today. Chart reading techniques is a 2 days topic. एक ही दिन में जितना पढ़ाऊंगा उतना कंफ्यूज होते जाओगे, ठीक है? So first you all will take print out of the chart and do let me know tomorrow the chart is available to you, ठीक है? तो कल हम एक बार फिर से चार्ट टेक्निक्स को रिवाइज करेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि किस टॉपिक का क्या था एंड कहाँ पे हम क्या यूज कर रहे थे, राइट? So tomorrow we'll have a practice on the chart reading technique again, and then we'll move ahead with further more topics. Done? So that's all for today. Have a good night, and tomorrow I think more students will come, so that अपना class will have full of capacity and I can move ahead without any hesitation. Okay? So that's all for today. We'll see you tomorrow. Have a good night. Good night, sir. थैंक यू सर।